ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے دعائے مغفرت کرے. الحمدللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء اللہم اغفر لی حینا میتنا شاہدنا وغیبنا صغیرنا وکبیرنا ذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم الميزان وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الله جزاك الله. ساتھیوں، جیسے آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ آج ایک عظیم الشان شمولیتی پروگرام بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا شمولیتی پروگرام ہمارے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہو رہا ہے. تو میں سب سے پہلے سابق کور کمانڈر، سابق گورنر، سابق وفاقی وزیر جنرل قادر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے اپنے شمولیت کا اعلان کرے. جنرل عبدالقادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور میں چاہوں گا، آپ چاہیں گے، بلوچستان چاہے گا کہ ان کو شائن شان طریقے سے ہم ان کی خدمت میں اس کارروائی کو کنڈکٹ کریں. اس کو صحیح طور پر چلانے کا بہترین طریقہ آپ کے تعاون سے ہو سکتا ہے اور آپ کے تعاون کے لیے کوئی بڑی کارکردگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ براہ مہربانی جو تقریر کرنے کی یہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے، میں کچھ بولوں گا پیپلز پارٹی کے شمولیت کے بارے میں، آئندہ لائے عمل کے بارے میں. نواب ثناء اللہ صاحب آئیں گے اور چیئرمین صاحب مہربانی کر کے آئیں گے. صرف ایک درخواست ہے، وہ ایک درخواست ہمارے روایات کے عمل ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی، آرام سے، خاموشی سے مہربانی کر کے ہماری باتیں سنیں. آپ کی بہت بہت مہربانی. جناب چیئرمین، میں آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے ساتھیوں کا، جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب کا اور باقی آپ کے جتنے ساتھی ہیں، پورے بلوچستان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے نئے اور پرانے جالوں کی طرف سے میں آپ کو جناب چیئرمین خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے ہمارے اوپر فیور کیا ہے، ہم اس کو فیور سمجھتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ کا پہلا دورہ نہیں ہے، کئی مرتبہ پہلے آ چکے ہیں. ہمارے ساتھیوں، چیئرمین صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر فریکوینٹلی آتے رہیں گے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، 3 دنوں کے لیے، اور آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، سب کچھ کرنے کا موقع ملے گا. میں جب تک اس پارٹی میں ہوں، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا، چاہے اس کے لیے کتنی منت و سماجت مجھے کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن میں چیئرمین صاحب کا آپ لوگوں سے قریبی تعلق ضرور استوار کر دوں گا. جناب چیئرمین، زرداری فیملی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. 1959 میں ہمارے بلوچستان کے 7 زہری ٹرائب کے ہمارے افراد کو شہید کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، اور وہ ایسا زمانہ تھا عجوبی ظلم و جبریت کا کہ کوئی آدمی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے لاشوں کو دفنانے کے لیے قبرستان
एहसान तक ले जाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था। जनाब चेयरमैन, आपके दादा हाकिम अली खान जरदारी साहब और मीर रसूल बख्श खान तालपुर सामने आए और सरदार जरदारी साहब ने मेहरबानी की, हमारी लाशें ले आए, कला दफनाने का बंदोबस्त किया, हमारे आंसू पूछे, हमारे खवातीन के सर पर दुपट्टे उन्होंने बहाल कर दिए। जनाब चेयरमैन, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम लोग ऐसे लोग हैं, बलोचिस्तानी रवायती लोग हैं, कभी भी एहसान को हम नहीं भूल सकते। ये एहसान हमेशा के लिए रहेगा। जनाब चेयरमैन, दूसरा ताल्लुक, जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिस वक्त मुल्क के वजीर आजम और सदर बने और वहां पर बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की दाग बैल डालने के लिए जरूरत थी कदावर शख्सियात की, तो सरदार दोदा खान साहब, जनाब नवाब सनाउल्लाह खान ज़ारी साहब के वालिद मोहतरम, वो आगे बढ़े और मौजूदा जाम कमाल साहब के दादा को भी उन्होंने साथ लिया और पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान की पहली गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद गवर्नमेंटें बनती रही। जनाब चेयरमैन, नवाब सनाउल्लाह साहब के वालिद साहब ने वो ताउन किया, आपके दादा ने जो एहसान किए, उसके बाद भी नंबर ऑफ टाइम्स मौके आए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक बरकरार रखने के, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाब सनाउल्लाह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, दस्ते ताउन बढ़ाने के लिए, हमारी सरपरस्ती करने के लिए और पीपल्स पार्टी की एक दोबारा निशाते सानिया, या पता नहीं सही उर्दू बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, एक नई कार्रवाई शुरू करने के लिए, और इंशाअल्लाह रब पाक ने चाहा तो जनाब चेयरमैन आप बहुत कुछ देख पाएंगे। ये जो जम्मे गफीर यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये जनाब चेयरमैन एक ट्रेलर है। मुझे कहा गया कि मैं बंदोबस्त कर लूं यहाँ पर लोगों के जमने लाने का। आपके स्टाफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 500 से ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना का दौर आ गया है। और मैंने नवाब साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जनाब इस किस्म की रिक्वायरमेंट है। नवाब साहब ने पूरी कोशिश की और मैंने बाकी बलूचिस्तान के हमारे 34 अजला हैं, बाकी तमाम इजलाल से मैंने जनाब चेयरमैन सिर्फ 10 आदमी बुलाए। ये जितने लोग यहाँ पर हैं इनकी अक्सरियत नहीं 90% जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़ारी के हल्के से मुताल्लिक है। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उसके हल्के वाले लोगों ने नवाब सनाउल्लाह साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम आएंगे और यहाँ पर अपनी मौजूदगी का हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने फिर उसको मिडवे रास्ता हमने क्लियर कर दिया। तो जनाब चेयरमैन साहब जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो लाखों के हिसाब से मजबे होंगे जहां पर आप एड्रेस करेंगे। जनाब चेयरमैन, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके नोटिस में मिलाना चाहता हूं। हमारा बलूचिस्तान मुख्तलिफ कौमियात से ताल्लुक रखने वाला सूबा है। यहाँ पर बलोच रहते हैं, यहाँ पर पश्तून रहते हैं, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले हमारे भाई रहते हैं 200 साल से 150 साल से। यहाँ पर हजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बड़े पुराने सेटलर हैं हमारे। यहाँ सिंधी बोलने वाले और सराइकी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान को सियासी तौर पर इनको तकरीबन जब भी यहाँ पर कार्रवाई होती है तो हम 7 हिस्सों में जनाब चेयरमैन बांटते हैं और हर एक इलाके का सियासी मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले शुमाल और मशरक की तरफ हमारे पश्तून भाई रहते हैं, उनकी सियासत हमेशा 2 बड़ी जमायतें वहां पर डोमिनेट करते रहे हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम और एक पश्तूनख्वा मैप। और उसके अलावा मरकजी पार्टीज भी मुख्तलिफ औकात में अपना हिस्सा डालते रहे हैं, कभी 2 मेंबर, कभी 3 मेंबर, कभी 1 मेंबर, कभी 4 वहां से मुंतखब होते रहे हैं। उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है। इसके बाद हमारा नहरी इलाका है। नहरी इलाका हमारा नसीराबाद जबियन पे मुश्तमिल है,
जनाब चेयरमैन, इनका सियासत आपके सिंधी सियासत से कुर्बत रखती रही है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की शोइंग रही है, यहाँ पर दूसरी मरकजी पार्टियों की भी कभी कभी शोइंग रही है। ये वो जगह है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हमारी नजरियाती वोट वहां पर है। इसके बाद सराबान और झालावान का हमारा इलाका है। बराए मेहरबानी खामोशी हमारी बेटियों। तो हमारा सराबान और झालावान का जहां तक पॉलिटिक्स है, जनाब ये खातून है, इसको बुला ले मेरे खान, ये खातून है, इसको बुला ले, इसको बुला ले, बेहतर ये है कि शोर बना दे। जनाब चेयरमैन, हमारा जो सराबान और झालावान का इलाका है, सराबान शुरू होता है बोलान से, या झालावान में होते हुए बेले तक ये चला जाता है। इनका ट्राइबल पॉलिटिक्स रहा है। फिर हमारे कराची लसबेला का, वो कराची से मुतल्लिक वहाँ की पॉलिटिक्स होती है। मकरान का इलाका हमारा नजरियाती कॉम्परसी सियासत वो लोग करते रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर पेनिट्रेशन हुई है मरकजी पार्टियों की, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बड़ा वाज़ेह है, वहाँ पर ठीक काम इंशाल्लाह हो जाएगा और हम लोग एंट्री कर सकेंगे, बंदे इलेक्ट करवा सकेंगे। फिर रक्षान डिवीजन है, ये मरकज से रिलेटेड गुर्बत रखने वाले सियासी जमायतों की हमेशा हामी रहे हैं और वहाँ पर सियासत होता रहा है। क्वेटा शहर जनाब चेयरमैन, ये है पाकिस्तानी शहर, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पर हर सियासी पार्टी अपना हिस्सा डाल सकता है। ये स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितनी मेहनत करता है। जनाब चेयरमैन, आपको मैं यकीन दिला दूं कि आपके पार्टी के वर्कर्स को जो मैंने देखा है पिछले 4-5 दिन में, बड़ी पोटेंशियल है जनाब चेयरमैन में, बड़ी पोटेंशियल है, और इनको अगर सही तौर पर हमने इस्तेमाल किया तो अगर ये सही तौर पर यूटिलाइज हुए जनाब चेयरमैन साहब, तो इंशाल्लाह क्वेटा शहर में 12 सीटें हमारी सूबाई को होने, तो इंशाल्लाह इसकी अक्सरियत जनाब चेयरमैन, मैं ये क्या इस बात को इंशाल्लाह भी यकीनी बनाएंगे कि इनकी अक्सरियत हमारे पार्टी के हक आ जाए। मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा खामोशी भाई, थोड़ी सी खामोशी। खास एक बहुत ही अहम बात करने वाला हूं, आपके इंटरेस्ट की है। जनाब चेयरमैन, हमारी सियासत शख्सियात के इर्द गिर्द, हमारी सियासत सूबे की, भाई क्या मसला है यार, ये बात में रखो भाई साहब, ये बहुत अहम बात। जनाब, हमारी सियासत बलूचिस्तान के शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रही है। हमारे मुल्क के 3 बड़ी सियासी जमायतें हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिससे हमारा ताल्लुक था, उसको हम खैरबाद कह चुके हैं। ये यहाँ के लोग सारे बैठे हुए हजारों की तादाद में हैं। एक आदमी अगर कहे कि कोई कदावर, यार बाद में कर दो उसको, बोलो यार। जब तक साहब आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेहरबानी करें बैठेंगे। तो जनाब, मैं अर्ज यह कर रहा था कि मुस्लिम लीग में जनाब चेयरमैन कोई कदावर शख्सियत नहीं रहा है। आज उस पार्टी की क्यादत एक ऐसी शख्स के हाथ में है जो कि पिछले इलेक्शन में उसने बहुत कम वोट लिए और वो जनरल सेक्रेटरी था। दैट इज अबाउट ऑल। कोई कदावर शख्सियत उनके साथ नहीं है। पीटीआई का सिर्फ एक अपना सूरी साहब है, अल्लाह इज्जत दे, इज्जतदार आदमी है, खूबसूरत जवान है, बहुत कुछ हैं, लेकिन बहरहाल उनके इलेक्शन के बारे में भी बड़े नुक्ते उठाए जा चुके थे। 65,000 जेली वोट। भाई साहब, आप खुद अगर चेयरमैन साहब नवाब साहब ने बोला उस्मान को बोला, तो उसमें पीटीआई में सवाए सूरी साहब के और उनका इन्फ्लुएंस भी क्वेटा शहर से मुतल्लिक था। बाहर उनका एक भी आपको कदावर आदमी नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी उनके बलूचिस्तान के इंटीरियर से जनाब चेयरमैन पिछले इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हुआ। 2 आदमियों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे। जनाब चेयरमैन, पीपल्स पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूं
किस बुनियाद के ऊपर। अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता, मैं मामूली आदमी हूँ। नवाब मैं भी हूँ, नवाब सनाउल्लाह साहब भी इस पार्टी में आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी भाई, जनाब चेयरमैन, तीसरा आदमी जो आज शमूलियत इख्तियार कर रहा है वो नवाब मोहम्मद खान शावानी साहब हैं। बलोचिस्तान में नवाब साहब आप जरा खड़े हो जनाब साहब। नवाब शावानी साहब खुद मिनिस्टर रहे हैं, खुद एमपीए रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम एमपीए रहे हैं, उनके दादा मोहतरम एमपीए रहे हैं, और बलोचिस्तान के कबायली बंदोबस्त के अंदर तीसरा नंबर इनके ट्राइब का है। झंडा उठाने वाले आदमी हैं। सलाम जी, चीफ ऑफ बैरक उनको कहते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान हैं जो कि आपके दादा मोहतरम के दौर में पीपल्स पार्टी में आए, कौम परस्ताना सियासत छोड़ के। उनका नाम है मीर हुसैन बख्श बंगलजई साहब। ये यहाँ पर है, बुजुर्ग आदमी है। आज जब उन्होंने सुना कि उनके कायद का पोता आ रहा है, नवासा आ रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने भी फैसला किया हुआ है कि वो पीपल्स पार्टी में, वो पहले भी थे, इस दरमियान में खामोश रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारी, अब दोबारा एक्टिव हो गए हो यहाँ पर। इसके बाद जनाब आली नेक्स्ट जो हमारा एमपीए शामिल होने वाला है, मैं कदावर शख्सियात की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की कितनी अहमियत बनेगी। जनाब आगा इरफान करीम खान अहमद जई साहब, खान कलात के भाई शाहजादा अब्दुल करीम खान के बेटे हैं। ये जनाब एमपीए रहे हैं और इसके वजीर रहे हैं। इनकी बेगम सेनेटर रही है, एमपीए रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी एमएनए हैं, और इंशाअल्लाह वो हमारे पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आदमी जो हमारे साथ शामिल हो रहा है वो है जनाब मोहम्मद यूनुस चंगेजी साहब, कर्नल है फौज के, और ये पहले हमारे सूबाई मेहरबानी 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 वहां पर फिर हमारे बलोचिस्तान की एक बेटी है मोहतरमा किश्वर जत्तक साहिबा, वो भी आज के दिन वो एमपीए रही हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। कहाँ पर है हमारी बीबी? बीबी जरा आप इस तरह आपको पता हो, वो बीबी वहां पर बैठी हुई है। एक और साहब हमारे जी 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 मैं करने वाला हूँ जनाब। इसके अलावा एक हमारे एमएनए थे, और एमएनए थे उस्मान अपना एडवोकेट साहब, उन्होंने भी नवाब साहब को रात को बताया था कि वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपना ऐलान किया हुआ है। जनाब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में इल्हाक पे दस्तखत करने वाले 3 नवाब थे और खान ऑफ कलात था। उन नवाबों में से एक नवाब भाई खान साहब थे। आज उनका पोता भी उसी नाम के साथ, नवाब भाई खान के नाम के साथ, उसने भी ऐलान किया है, यहाँ पर बैठे हुए, आपका इस्तकबाल भी किया, आपसे मुलाकात भी, उन्होंने भी मेहरबानी की है, वो भी हमारे पास शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही मोहतरम, बहुत ही पॉपुलर नवाब साहब के बड़े अच्छे दोस्त, अच्छे सियासी लीडर हमारे सरदार हमायूं खान गबोल साहब है, वो भी ज्यादातर इस्लामाबाद सारी अपना कराची और भागते रहते हैं। उन्होंने भी मेहरबानी की है, वो यहाँ पर आए हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पार्टी को बाहर से आज आने वाले 9 ऐसे आदमी जिनका मैंने जिक्र किया, और वो एमएनए रहे, एमपीए रहे, सेनेटर रहे, वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
علاوہ اس کے 7-8 آپ کے اپنے پارٹی کے بھی پارلیمنٹیرین، پرانے پارلیمنٹیرین، وہ بھی ہمارے ساتھی بنیں گے. تو جناب چیئرمین، آج ابنی شو ابتدا سے شروع کر کے 16 یا 20 افراد کے اوپر آپ کی پارٹی کی ابتدا ہو رہی ہے. رب پاک نے چاہا تو یہ بڑے نتیجے دیں گے. صابر صاحب بھی ہیں ہر لحاظ سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تعلیم دی ہے، بڑا تجربہ ہے، ہمارے ساتھ سیاست کرتے تھے اس زمانے کے، اور ایسے صحیح خطوط پہ آپ کی رہنمائی کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ پارٹی ہمارا آگے بڑھے گا. تو جناب چیئرمین، بات کہنے والی میری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موقع بہترین دیا ہے. آپ نے جو مہربانی کی یہاں پر آئے ہیں، آپ کا یہ جو ایفرٹ ہے یہ ضائع نہیں جائے گا. اس کا نتیجہ رب پاک نے چاہا تو اس کی مرضی ہے. ہم نے ایمانداری کی، محنت کی، اپنا کام صحیح طور پر کیا، اور جالوں کو صحیح استعمال کیا، جالوں کی صحیح عزت کی، جالوں کو اگر ریسورسز ہم نے پرووائڈ کیے. جناب چیئرمین، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب پاک کی مرضی سے انشاءاللہ ہماری بلوچستان میں حکومت بنے گی، اور نہ صرف حکومت بنے گی، اکثریتی حکومت بنے گی. ہم اس کے لیے محنت کریں گے، اور رب پاک محنت والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. جناب چیئرمین، جن لوگوں کے میں نے نام بتا دیے، یہ تو وہ لوگ تھے جو ایکس پارلیمنٹیرین تھے. علاوہ اس کے میری بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس، وہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو یہ فرنٹ روز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے روز پہ بیٹھے ہیں، رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ذکر نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آپ کے کاروان کا حصہ بن رہے ہیں، اور آلریڈی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ان کے نام میں پڑھنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا آپ کو. جناب اس میں نواب شبیزی صاحب ہیں، سابقہ صدر ہیں، ہمارے مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر ہیں. یہ ہمارے بنکران سے ان کا تعلق تھا. نواب زادہ شہریار نوشروانی صاحب ہیں، رخشان ریجن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں مسلم لیگ کے. اور نواب خاران جنہوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ 1947 میں، ان کے پوتے ہیں ڈائریکٹ. بڑے اثر رسوخ والے آدمی ہیں. رب پاک نے چاہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو الیکٹیبلز کے کیٹیگری میں ہم شمار کر سکتے ہیں. نواب بھائی خان صاحب کا میں نے کہا، سردار عمران بنگلزئی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اچھی ووٹ بینک رکھتے ہیں. سردار چنگیز خان ساسونی صاحب، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی کوئی 8-10 حلقوں میں ان کا ووٹ بینک ہے. سردار تاج محمد، مہربانی ذرا مہربانی، یہ ٹائم مہربانی. سردار میر تاج محمد خان زہری ہیں، میر عبدالرحمان زہری صاحب ہیں، سابق چیئرمین رہے ہیں. میر عرفان کرد صاحب ہیں جو کئی مرتبہ میرے قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کرتے رہے ہیں. جناب محمد بزنجو صاحب ہیں، گوادر سے ان کا تعلق ہے، بہت زبردست قسم کے جے ایل اے بنیں گے، زبردست ورکر ہیں، اور میڈیا پہ بھی کنٹرول، ویسے بھی سیاسی کارروائی میں ماشاءاللہ بڑا مقام. آغا شاہ حسین صاحب ہے، پنجگور سے ان کا تعلق ہے. غازی خان پدرانی صاحب ہے، نصیر آباد سے ان کا تعلق ہے. نوابزادہ شاہجہان زہری صاحب ہیں، یہ زہری سے ان کا تعلق ہے. ہمارے پختون ایریا سے دو ہمارے بہت ہی اچھے اور بڑے پوٹینشیل قسم کے کینڈیڈیٹ، اور میں جانتا ہوں ان کا ووٹ بینک ہے. ایک سردار ہمایوں خان خلجی صاحب ہیں، سردار یوسف خان خلجی صاحب کے وہ بیٹے ہیں. وہ میرے خیال میں اس دکم پیل میں بہت ہی عزت دار آدمی ہیں. شاید کوئی اندر انٹری اپنا نہیں پا سکے، لیکن باہر مجھے بتایا کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. ہارون خلجی صاحب ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک نصیب اللہ چکزئی صاحب ہیں، ہمیشہ 4 سے 5 ہزار ووٹ لیتے رہے. جی ہے نصیب اللہ چکزئی صاحب ہیں جی. اچھا، یہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں. بہت مہربانی جی، بہت. اچھا، یہ مہربانی جی، مہربانی. ہمارے پشتون بھائی ہیں. بھائی ذرا تھوڑا سا چیئرمین صاحب کا ٹائم کم ہے، واپس جانا ہے. اگر جا رہے بہت اچھی بات ہے، جذبات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. ہم سب محبت کرتے ہیں بھٹو صاحب سے، بی بی شہید سے، سب سے. تھوڑا سا ذرا ٹھیک ہے.
दरियाब जहरी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे एक हमारे लीडर हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनके बेटे हैं, अपराइजिंग किस्म के यंगस्टर हैं इंशाल्लाह। हाजी फैसल जहरी साहब हैं, मीर जुमा खान शकरानी हैं, मीर मोहम्मद अकबर जब है, मौलाना जहरी, मौलाना जकरिया बाजोई साहब, पीर अब्दुल वहाब जहरी साहब, मीर कंबर बेंगल, कबीर बेंगल के नाम से मशहूर हैं, जनाब मलिक रहमतुल्लाह नोतजी साहब चागी से बहुत अहम शख्सियत हैं, और इनके भाई 2 मरतबा वजीर रहे, 2 मरतबा एमपी रहे, और इनकी ट्राइब के हाथ में ये सीट है, पहली मरतबा इधर उधर हो गया, हमेशा ही जीतते हैं और इंशाल्लाह वो भी आएंगे। शौकत बंगुली साहब की अच्छी असर रसूख है, अब्दुल वहाब जारी साहब हैं, सरदार आजम रेकी साहब हैं, मीर शाजे बलोच साहब हैं, मीर असफलियार बलोच साहब हैं, वडेरा फारूक जामोट साहब हैं, जनाब ईद मोहम्मद अरुकेट साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं बस, और बड़ा अच्छा असर रखते हैं खुददार के अंदर, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जनाब मीर मोहम्मद आलम जरतक साहब हैं, रईस अब्दुल अली साहब हैं, वडेरा अरबाब अलीजी साहब हैं, मीर फैसल देवार साहब हैं, सरदार फैसल रहमान साहब हैं, हाजी नूरुल्लाह बादीनी साहब हैं नोशकी से, और सरदार मोइन खान का मैंने नाम किया, जनाब सिद्दीक आगा साहब हैं, जनाब सैफा मोहम्मद रसी साहब हैं, और जनाब दाऊद कुर्द साहब हैं, और जनाब चेयरमैन एक और मेहरबानी जरा थोड़ा सा भाईजान डिसिप्लिन का एक चेयरमैन साहब, एक हमारे एक खास किस्म के जियाले मेरे दोस्त साउथ अफ्रीका से मीर इस्लाम बलोच उनका नाम है, यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ये इनकी खानदान 300 साल से वहां पर रहती है। ये कराची कभी आते हैं, जब उनको पता चला कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, वो पिछले 7 दिन से यहाँ पर है, और मुख्तलिफ लोगों से जिनसे उनकी दोस्ती है उनको कन्विंस करते रहे। हमारे ये पश्तून भाई जो शामिल हो रहे हैं, ये उनकी एफर्ट की वजह से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में बराबर का हिस्सा लेंगे। जनाब चेयरमैन, ये वो नाम थे जो मेरे पास आए, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमारे वो भाई जो बेशुमार हैं उनमें से हर एक आदमी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने के जिन लोगों के नाम मैंने बताए। सिर्फ ये मेरी नालायकी समझ लो, ये टाइम की कमी समझ लो कि मैं वो कार्रवाई नहीं कर सकता, सबके नाम नहीं लिख सका, और ना इसके लिए टाइम होता है, बेशुमार लोग हैं। तो सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी। जनाब चेयरमैन सबके सब आपको वेलकम करते हैं। जनाब चेयरमैन सबके सब ने फैसला किया है कि आपके कारवान में, आपके मीर कारवानी में ये आपके कारवान का हिस्सा बनेंगे। अब इसके बाद